So good afternoon all. Good afternoon, sir. Okay, so in the last session, I think so we have started KMAP, but we have not completed that topic. Yes. Okay, so we have to start that topic. Okay. Okay, so we will wait for a few minutes so that one, two, three, four, two are remaining. So just we will wait for 2 minutes and then we will start today's session. Okay, so meanwhile, you can ask them to join. Okay, so I don't think so they are coming today. So Yes, sir. okay, so we will just move towards full adder. So what is the difference between full adder and half adder? Hello. Yes, sir. Yes. What is the difference between full adder and half adder? Hello. Yes, सौरभ. Hello. हाँ सौरभ बोलो. Sir, sir, input of sir, मतलब half adder has two input values, sir. Yes. There are two inputs. Hello. Yes, yes, Saurabh, you are correct. There are two inputs in half adder, Yes, sir. and in full adder we are having three inputs. Yes, sir. So that is the Yes, difference. sir. Yes, sir. Okay. So if you are having three input, how many possible combinations are there? 8, sir. 9, 8, sir. 8. 2 raised to power 3. 3. So we need to write 8 possible Two raised to combinations. power. Yes, sir. So we are having three variables A, B, C, and we are having 8 combinations. So 4 zeros, 4 ones, then 2 zeros, 2 ones, 2 zeros, 2 ones, then alternate 0 1.
So this is your input. Now, how many outputs are there? Sir, one output. One or two? Two, sir. Sum and Sum carry. and carry. These are two outputs are there. So just I will label them whose are input. So these three are inputs. And these two are outputs. Output. Okay, now fill the table. What will be the output when input is 0, 0, 0? 0. 0. Carry 0. Sum Carry 0, be carry. 0. Okay. Then 0, 0, 1. 1. 1. Carry 0. Carry 0. Then 1. 1. 0, Carry 0. 1. Carry Carry 0. 0. okay. 4, 0, 1, 1. 0. Carry 0. 1. 0. Carry 1. Then 1, 0, फिर 0. 0. 0. carry 1. 1. 1. 1. 0. Carry. Sir 1. फिर yes हाँ 0. Carry 1. carry 1. Okay. So 1. is it Carry 1. 1 1. correct? Okay. So we have written all the possible combination of inputs and outputs. Now, I want to find the expression for sum. Okay. So now if I want to find the expression for one, how I can find? That is the another question. Now there is a no, it doesn't resemble to some gates. So I can't remember that any gate can resolve this problem. So there is a one way where how in that way you can write the answer. So just I will tell you that way. Then if you want to simplify, you can use K-map method. Okay. So just I will mark those rows whose output is 1 for sum. So this for this output you are having 1. So I will mark in green color. So for this case, for this case, for this case and for this case. इन चारों केस के लिए sum 1 है. Yes sir. Okay. So now if your variable is 0, you represent by bar. If your variable is 1, you should not represent by bar. Okay. ठीक है. तो ये मेरे को इसका एक्सप्रेशन लिखना है. सो आई वांट टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर दिस वन विच इज मार्क्ड इन रेड. तो इसके लिए वेरिएबल क्या है, यहाँ पर क्या है, ए क्या है, 0 की 1. 0. So you should represent by a bar. Yes sir. A bar. A bar. Then b 0 है कि 1. 0 है sir. Okay. I try to repeat. B bar. तो B बार भी लिखेंगे उसके. So first a bar will be there. B बार. Then b bar will be there. फिर सिर्फ C हो जाएगा सर, बार नहीं लगेगा. नहीं वहाँ भी है. नहीं इसको ले रहे हैं सर, तो C हो जाएगा. C. So this will be the term for Yes sir. this. So just I represent this number by A bar B bar C. W. Okay. Yeah. So this is for W expression. So W will be this one. तो क्या W क्या सर? मैंने एक वेरिएबल असाइन कर दिया उसके लिए, अच्छा. ताकि बाद में वो जब कंबाइन करो तो आपको पता चले. Yes. नाउ सेकंड यहाँ पे ये जो है ये है x. x का एक्सप्रेशन लिखवाओ मेरे को. व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर x? x इक्वल टू हो जाएगा या सर A bar B C bar. Sir, A bar B C bar. A बार B C बार. c बार आएगा ना, तो a बार A bar B C A बार B. हाँ b बार लास्ट में लिख दे रहा हूँ. Yes sir. Okay. So x will be this one. Y will be सर A A bar B C. a.
बी बार सी बार। B bar C bar. So यस सर। here I will write A बी बार सी बार। so this will be X, Y, Z, वाई है सर वाई। Z, जेड में ए बी सी। Z will be equal to AB. हो गया। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा सम होगा, दैट विल बी यस सर। W प्लस X प्लस Y प्लस Z। सो जो आपका पर रो है, रो मल्टीप्लाई होंगे, जो कॉलम है वो मल्टीप्लाई होंगे, जो रो है वो ऐड होंगे। तो आंसर क्या होगा सम का? तो W की जगह रख दो ये A बार B बार C बार, ये W की जगह रख दिया, देन प्लस X की जगह पे ये रख दो A बार B C बी बार, बार। Y की जगह पे ये रख दो, एंड Z की जगह पे ABC। नाउ दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर सम, लेकिन ये मिनिमम है, ये गारंटी नहीं है, ठीक है। सो हियर यू आर गेटिंग द मिनिमम फॉर्म, ऑल्दो यू हैव नॉट सिंप्लीफाइड, बट दिस इज नॉट ए minimum form. So what you need to do, बूलियन एक्सप्रेशन लगा देंगे सर। बुलियन एक्सप्रेशन से नहीं होगा, के मैप से जाना पड़ेगा। तो बुलियन अलजेब्रा से हो सकता है, बट कभी गलत होगा, कभी गलत नहीं भी हो सकता है। तो आपका मिनिमम आंसर आ भी सकता है और मिनिमम आंसर नहीं भी आ सकता है, दोनों चांसेस हैं। तो अभी क्या करना है, उसकी जगह पर के मैप सीखना है। तो कितने वेरिएबल है के मैप, लास्ट टाइम कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? हेलो, लास्ट में के मैप में कहाँ तक पढ़ा था हमने? सर एक्सप्रेशन आ गया था, शॉर्ट एक्सप्रेशन। तो के मैप कंप्लीट हो गया था कि नहीं हुआ था? हो गया था सर। नहीं हुआ था सर। नहीं हुआ था सर, नहीं हुआ था। ओके ठीक है, चलो मेरे पास 3 वेरिएबल है, जस्ट मिनट, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं कि आपको पता चल जाए। ओके,
ठीक है. So if you are having 3 variables, how many combinations are there? 8 combinations. तो ये तो हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था कि वेरिएबल कैसे असाइन करने हैं. तो 0 1, the order here is 0 0 0 1 1 1 1 0. ये बता दिया था कि यहाँ 1 0 की जगह 1 1 आएगा और यहाँ 1 1 की जगह. यस सर. तो ये कंप्लीट हो गया. तो ये कंप्लीट हो गया था. So now we will see how to, we will start with some examples. तो ये 0 1 2 sorry 0 1 3 2 4 5 7 6 ये नंबर हो गए थे कंप्लीट. यस सर. यस. नहीं याद है तो बोलो कि नहीं याद है, क्योंकि नंबर जरूरी है. सर हो गए थे. सर नहीं याद है सर. ओके. तो सर ये क्या कब हो है? गया था? डेसिमल नंबर लिखे हुए हैं. तो अगर आप लेफ्ट से राइट ऊपर की तरफ रीड करते हो तो क्या होगा? 0 0 0. तो पहला नंबर 0 0 0 होगा. तो ये आपका पहला नंबर है. Then second number is 0 0 1. So here you will write 0 0 1. So this is the second number. तो अगर 0 0 1 को बाइनरी में डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? 1. फिर यहाँ करो 0 और ऊपर से 2 1. तो 0 1 1. तो ये कितना होता है? 3. इसी तरीके से सारे किए हुए हैं. तो यू कैन रिमाइंड दैट थिंग. ठीक है. तो इस तरीके से सारे बन जाएगा. तो यहाँ पर 7 के लिए 1 1 1 है. 6 के लिए 1 1 0 है. 2 के लिए 0 1 0 है. 4 के लिए 1 0 0 है. 5 के लिए 1 0 1. So up to this point we have completed. Now we have start with the grouping. So now grouping भी हमने थोड़ी बहुत की थी. तो अभी एक्सरसाइज से करेंगे कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या करना है. So here ओके. तो अब आपको पहले एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? पहला तो वही प्रॉब्लम है. तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा, सिंप्लीफाई यूजिंग के मैप. फर्स्ट एफ ऑफ ए बी सी. तो ये हो भी सकता है या तो ऐसा होगा एफ इक्वल्स टू समेशन. सो योर एक्सप्रेशन विल बी लाइक दिस. Summation m, it will be always small, m 0, 1, 2, 3, 6, 7. So your example, or you can say the question can be asked in this session. Now what this number represents? So this number represents that we have to fill 1 in this block. तो 0 के ब्लॉक में भी 1 भरना है, 1 के ब्लॉक में 1 भरना है, 2 के ब्लॉक में 1 भरना है, 3 के ब्लॉक में 1 भरना है, 4 के ब्लॉक में 0 भरना है, 5 के ब्लॉक में 0 भरना है, 6 के ब्लॉक में 1, 7 के ब्लॉक में 1. तो ये नंबर वो बताते हैं कि 1 कहाँ कहाँ पर है. तो 0 में क्या है? 1. तो यहाँ पर 1 किलो. 1 में क्या है? 1 में भी है 1 नंबर. जो नंबर यहाँ प्रेजेंट है वहां पर 1 आएगा, जो नंबर वहां प्रेजेंट नहीं है वहां पर 0 आएगा. तो हियर यू हैव टू राइट 1. 0 लिखने की जरूरत नहीं है. सो वी आर जस्ट फॉलोइंग दैट वी नीड टू राइट 1. देन 2 में 1 लिखना है, तो यहाँ पर लिखना है 1. सो वी विल राइट 1 हियर. Then we need to write 1 at 3. So 3 is here. So here you need to write.
then 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 is here. So here you need to write. Then you are having 7. So 7 you are having right one. So you write 7. So step first. Create a 3 variable K map. तो पहला तो ये 3 वेरिएबल K map ऐसा बन जाना चाहिए. सेकंड स्टेप, फिल ऑल वन. तो जहां जहां पे 1 दिया है वहां पर आपको 1, भर देना है. दैट इज योर सेकंड स्टेप. नाउ स्टेप 3. Group all ones. Okay, now you have to group all ones. And remember, the size of group should be maximum. So you have to follow the size. Size will be 2 raised to power 3, that is 8. So the valid sizes will be, or you can say the valid size of groups will be 2 raised to power 3, 8, 2 raised to power 2, 4, then 2 raised to power 1, that is 2, then 2 raised to power 0, that is 1. So you can make a group of 1 having these sizes. तो पहले 8 का हो सकता है, फिर 4 का हो सकता है, फिर 2 का हो सकता है, फिर 1 का हो सकता है. Apart from this, you don't have any choices. So you can't make any other group. यहाँ तक क्लियर है सबको? हेलो सर. हाँ ओम. सर हाँ ओम बोलो. सर साइज ऑफ ग्रुप सर, ये थोड़ा. साइज ऑफ ग्रुप अभी साइज बनाया नहीं है मैंने, बताऊंगा अभी साइज कैसे बनाते हैं. साइज क्या होता है वो बताऊंगा. अब यहाँ पर तुमको यही अब बताने जा रहा हूँ कि अब यहाँ पर बहुत जगह पे 1 दिख रहे होंगे. दिख रहे हैं? यस सर. ठीक है. अब इस 1 को मेरे को कवर करना है. कवर करना है मतलब कि मैं इनको सबको कंबाइन कर सकता हूँ 1 को, और एक ग्रुप बना सकता हूँ. तो वो जो ग्रुप होना चाहिए उसका साइज ऐसा होना चाहिए, या तो 8 होगा, या तो 4 होगा, या तो 2 होगा, या तो 1 होगा. तो कोई 3 का ग्रुप नहीं बना सकता. से फॉर एग्जाम्पल किसी ने ये ग्रुप बना दिया, ये 3 का, तीनों ये 3 1 आ गए. सर ऐसे 4 नहीं वाला वाला दिख बनाएगा. ओम, यस सर. ये 3 का ग्रुप बना, 3 1 का एक साथ. यस. ये इनवैलिड है, ये सही नहीं है. ठीक है. 4 कितना साइज होना चाहिए उसमें? उसमें कितने 1 होने चाहिए? या तो 8 होने चाहिए, या तो 4 होने चाहिए, या तो 2 होने चाहिए, या तो 1. 1 होना. एंड यू हैव टू ट्राई फ्रॉम द टॉप. पहले 8 का ट्राई करो, 8 का नहीं बन रहा है तो फिर 4 का ट्राई करो, 4 का भी नहीं बन रहा है तो 2 का बनाओ, 2 का भी नहीं बन रहा है तब 1 का बनाना है. इतना क्लियर है? यस सर. ओके. तो एक और चीज ध्यान रखनी है, द ग्रुप शुड नॉट बी डायगोनल. डोंट फॉर्म डायगोनल ग्रुप. ठीक है. डायगोनल में ग्रुपिंग नहीं करनी. इसका मतलब क्या है कि यू कांट मेक ए ग्रुप like this is a wrong way of grouping. ठीक है. This is a wrong way of grouping. So diagonal you should not form. Either you can form horizontal or you can form vertical. तो यही दो में ग्रुपिंग हो सकती है. ठीक है. अब इसमें कितने 1 का ग्रुप बन सकता है? 8 का बन सकता है. सर
उदित, गौरव। 4 और 2 सर। नो सर। 4 और 2। हाँ चलो, 4 का कौन कौन Yes, सा sir. ग्रुप बनाना है आपको? आप नंबर बोलो उसका। सर 3 2 7 6। 3 2 7 6। ओके ठीक है, पहला ग्रुप हमने ये बना दिया 3 2 7। 4 का भी बन सकता है तो कोई नहीं। ओके, अभी भी 2 1 बाकी है, अब क्या करेंगे? 0 1 सर। अभी भी हाँ, 2 का अभी ग्रुप दोनों बनेगा। बन 2 जाएगा। का ग्रुप बन सकता है, लेकिन ये 2 और को जोड़ के 4 का ग्रुप बना सकता है, ये चारों का बना सकता है ना ऐसे चाहे तो। यस सर, यस सर, बन यस सकता सर। है। यस सर। ओके, तो एक और रूल ये है कि अगर आपका ग्रुप का साइज बड़ा है, जो ग्रुप पहले से बन गए हैं और उसके 1 के साथ मिलकर वो बड़ा ग्रुप बना सकता है, तो आपको बड़ा ग्रुप बनाना है, छोटा नहीं बनाना। सारे 1 रेक्टेंगल के अंदर कवर हो गए? यस सर। कोई रेक्टेंगल के बाहर है 1? कोई 1 ऐसा नो है जो सर। कवर नहीं हुआ है? तो ऑल नो 1 सर। हैव कवर। तो अगर ऑल सब 1 कवर हो गए तो हमारी ग्रुपिंग कंप्लीट हो गई। सर ये 4 4 का हुआ ना? हाँ, 2 4 4 के हुए। ओके, अब मेरे को आंसर लिखना है इसका। ओके, तो यहाँ हो गया। अब मेरे को आंसर कैसे लिखूंगा वो बताओ। 0 का मतलब क्या होता है? ए बार। यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है ऊपर? ए। और ऊपर कौन सा यहाँ वेरिएबल है? बी सी। तो 0 मतलब क्या होगा? ए बार। 1 मतलब ए 1 मतलब ए। ए सर। 0 0 0 मीन्स बी बार बी सी बार बार। सी बार। 0 1 मतलब बी बार सी। बी और सी, बी बार सी, बी बी सी। सी, ए बी, सी बार। बी बार सी। ठीक है, ये लिख। बी नहीं, सी बी बार। सी बार। अब मुझे ग्रीन के ग्रुप का आंसर लिखना है। बी बार सी बार प्लस। एक मिनट। ओके सर जो कॉमन होगा उसको हटा देंगे। ठीक है, मतलब पढ़ा है वो। ए बार लेफ्ट से आएगा, ठीक है, क्योंकि ए बार चेंज नहीं हो रहा है। और ऊपर क्या चेंज नहीं हो रहा है? बी बार यहाँ है, यहाँ पे बी है, बी ये बार तो चेंज सर हो गया। कॉमन वाला। नहीं, बी बार तो चेंज हो ही रहा है, देखो ये सब यहाँ 2 पे का पहले बनाते वाले तो टर्म में बी बार है और यहाँ पे यस सर। सी बार है और यहाँ पे सी है, दोनों चेंज हो रहे हैं, तो क्या आएगा? कोई भी नहीं सर। 1 आएगा अगर दोनों चेंज हो रहे हैं तो। यस ठीक सर। है, तो ये आ गया तुम्हारा ग्रीन वाले ग्रुप का आंसर। ब्लू वाले ग्रुप का आंसर क्या आएगा? हाँ बी सर। बी। बी चेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो सर। इसका हाँ बोलो बोलो उदित। ओम प्रकाश बोल रहा है सर। ओम बोलो। सर ये सर ये कैसे किया सर? जैसे अभी आंसर ओके, दिए ग्रीन बस वाला। देख ले अभी। हाँ बताता हूँ तुमको। बी आएगा सर, बाकी सब हम्म, चेंज हो रहा है। हाँ, अब इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लिख दो, तुम्हारा आंसर आ गया। ए बार डॉट बी, ए बार प्लस बी इज योर आंसर। ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। अब ये कैसे आया ओम? ओम, बाकी सबको क्लियर है? गौरव, सौरभ? यस सर सर। यस सर, यहाँ तक। यस सर। ओके, ओम देखो यहाँ पर, लास्ट में बताया था कि कैसे लेना है ग्रुपिंग, मतलब अब आप देखो, ग्रीन वाला खाली फोकस करना हो। ग्रीन वाला यहाँ पर है, ये मैंने जहाँ लाइन खींची है, ये ग्रुप लेफ्ट साइड में ये है ए बार। यस ओम है। अब ऊपर देखते हैं। सर। हाँ ओम, बोलो ओम। यस सर। हेलो सर। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ मैं। कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। हाँ सर बताइए। नहीं नहीं, अब सिर्फ यस सर बोला सर। ओके, अब ये जब ग्रीन के ऊपर देखो तो ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स है ये चारों जगह पर प्रेजेंट है, जहां पे मैंने लाइन खींची है। बी बार सी बार में भी है, बी बार सी में भी है, बी सी में भी है, बी सी बार में भी है।
यस सर, यस सर। ओके, नॉर्मली इसका मतलब क्या है कि ये जो ग्रुप बना रहे हो ना, ये सब ऐड हो रहे हैं, ठीक है, सबको ऐड करना है, सबके यस बीच सर। में और ऑपरेशन होगा। तो और ऑपरेशन का एक बेनिफिट है, देखो बताता हूँ क्या, बी बार सी बार प्लस बी बार सी प्लस बी सी प्लस बी सी बार। अब इसको सिंप्लीफाई करो, पहले में से बी बार कॉमन ले सकता हूँ, ले सकता हूँ बी ओम, ओम ओम। हेलो सर। हाँ सर उसके यहाँ ना नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, उसी कारण नहीं सुन पाता है प्रॉपरली। ओके, यस सर, यस सर, यस सर। दीवार कौन सा हाँ 1 हो गया। सेकंड में सर? इसका मतलब है कि अब मैं यस सर। इसको सिर्फ एक लॉजिक किया है, तुमको याद हेलो करने सर। का एक तरीका बताया कि अगर यहाँ पर ये चारों में देखो, पहले में क्या है बी बार है, दूसरे टर्म में भी बी बार है, तो बी बार बी चेंज नहीं हुआ, तीसरे में क्या है बी है, तो बी चेंज हो गया, तो वो नहीं लिखना, जो चेंज हो रहा है वो नहीं लिखना, जो कांस्टेंट है वो ही लिखना है। फिर दूसरे में देखो सी बार है और दूसरे में सी है, तो सी भी चेंज हो रहा है, तो कुछ नहीं आएगा। अगर कुछ नहीं आ रहा है इसका मतलब 1 आएगा। अब दूसरा देखते हैं जो ब्लू में लिखा है, ब्लू में जो लिखा है उसमें एक ग्रुप यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है, ओम। लेफ्ट साइड में क्या क्या प्रेजेंट है, यस सर। देखो ये ब्लू वाला ग्रुप में ए बार भी है और ए भी है, तो कुछ लेंगे वहां से कि नहीं लेंगे, ए बार प्लस ए क्या होगा 1, ए बार प्लस ए इक्वल टू 1, ठीक है। यस सर। तो लेफ्ट साइड पे 1 क्या यस। आया 1। अब ऊपर देखो, ये दोनों में बीसी और बीसी बार यही प्रेजेंट है, ये दोनों में तो नहीं है ना, ये ब्लू वाला ग्रुप। हाँ, तो उन दोनों में कॉमन क्या है देखो, तो नो सर। पहले में बीसी है, दूसरे में बीसी बार है, तो ये बी कॉमन है, तो इस बी ग्रुप सर। का आंसर क्या आएगा बी। बी। जो कॉमन बी। है वही लिखना है, बी ठीक सर, है। बी। एक और एग्जांपल लेते हैं तो तुमको ज्यादा क्लियर होगा। We will do the same example for OR gate, for कैरी। अच्छा चलो फिल करवाओ, कैरी कहाँ कहाँ पे 1 है, यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ ताकि तुमको वो दिक्कत ना हो कि कहाँ कहाँ पर 1 है। राइट, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6, 7। तो पहले तो मेरे को ये एक्सप्रेशन बताओ कि ये एक्सप्रेशन क्या होगा इसके लिए। ये मैंने लिखा था, कैरी के लिए अगर मेरे को ये लिखना हो तो क्या लिखूंगा यहाँ, बोलो। तो पहले हो जाएगा सर। सर 3+5+6+7। 3+5+6+7, ओके। तो प्लस प्लस नहीं लिखना, सिर्फ 3,5,6,7, क्योंकि 3,5,7 प्लस आगे लगा हुआ है, 7 समेशन यस लगा सर। हुआ है, ठीक है। यस। अब यहाँ पर कहाँ पे भरेंगे, 3 पे, 3 में 1 है, 3, 5 यस सर। तो ये 1 डिलीट कर देता हूँ, ये भी 1 डिलीट कर देता हूँ। पहला 3 में चाहिए, फिर 5 में चाहिए, तो ये मूव करके 5 में ले आता हूँ। फिर 6 में 6 है सर, कॉर्नर 6 पे। है और 7 भी है, 7 ओके। भी है, इसको सिर्फ डिलीट कर दिया 5 वाला सर। 5 भी है, 5 भी है। 5 भी है, 5 तो लिया मैंने। अब लिया बताओ सर। ग्रुप बनाना तो 8 का ग्रुप बनेगा, चलो ये बताओ 8 का नहीं 4 सर। का बनेगा, नहीं सिर्फ सर। 2 का बना। 2 नो का सर। बनेगा, तो 2। का ही बनेगा हाँ सर। तो 2 का बनाते हैं। 2 का वो सर। डायगोनली बनेगा डायगोनल सर। क्यों दोनों में बनाना है, डायगोनल तो नहीं बनेगा। इनवैलिड है। रूल ही नहीं। डायगोनल वैलिड है। इनवैलिड है। फिर डायगोनल पहले मैंने 3 और ऐसे 7 का बना लिया, ठीक है। दूसरा कौन सा ग्रुप बनाऊंगा, बोलो। 5 5 7 सर। 5 और 7, 7 ठीक 6 है। 7
5 सर 7 को बना दीजिए सर। 6 7 5 7 उसके बाद 6 7 भी बन सकता है आंसर। बस और उसके बाद 6 7 भी बन जाएगा। फिर 6 7। ये 3 ग्रुप बन गए, ठीक है। चलो आंसर बोलते जाओ। पहले ग्रुप का आंसर ग्रीन वाले। ग्रुप का आंसर सर ए 12 रहेगा इसी। एक मिनट पहले एक मिनट। ग्रुप में सर सर ग्रीन सी वाले हो में जाएगा सी होगा। सर, आंसर सी हो जाएगा। सी होगा। पहले वाले में सी देखो, होगा। एसी सर, नहीं होगा। एसी एसी सर, चलो ग्रीन वाले में एक मिनट। हाँ, ग्रीन वाले में आएगा एसी। लेफ्ट साइड से ए, क्योंकि ए ही यहाँ पर है, ए बार तो है नहीं, तो अगर एसी होगा दोनों सर, प्रेजेंट एसी। हो तो ही बना सकता है, तो ए तो आएगा लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से ए आ गया। अब ऊपर देखो, ऊपर ये दोनों में प्रेजेंट है, बी बार सी में और बी सी में, तो दोनों में कॉमन क्या है? सी। सी तो सी पहले का कॉमन। आंसर आएगा सी। कॉमन है सर। फिर ब्लू वाले ग्रुप का आंसर क्या आएगा? पहले तो सर सी सर, ए बी सिर्फ सी सी। सर। क्या क्या जाएगा? देखो ठीक से देखो, ए बार में भी है और ए में भी है, बी दोनों जगह पर है। बी बीसी सी सर, सर, बीसी। बी सी। सर बीसी होगा। हाँ बीसी होगा। 20 ए बार और ए वन हो जाएगा। हाँ सही है। अब लास्ट ग्रुप जो है, ये पिंक कलर में है, उसका आंसर लास्ट क्या ग्रुप होगा? हो जाएगा सर ए तो होगा ही सर। ए बी सर, सर ए ए बी होगा, ए ये बी भी होगा होगा सर, सर, ए बी। ये भी। हाँ ए तो ये और आप, बी, यस सर, बी ये होगा। भी तो। तो ये आंसर होगा। तो अब ये तीनों को प्लस कर दो, तुम्हारा एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो ये किस चीज का हमने किया था? कैरी का। तो कैरी का एक्सप्रेशन क्या होगा? कैरी विल बी इक्वल टू ए सी प्लस बी बी सी सी प्लस प्लस ए ए बी। बी। तो दिस इज द एक्सप्रेशन। सेम वे यू कैन फाइंड फॉर सम। सम के लिए फाइंड करो, क्या होगा? नोटबुक में ट्राई करो। ये क्वेश्चन जीटीयू में मैंडेटरी है, और एनीवेयर इफ यू गो, दिस इज द मैंडेटरी क्वेश्चन। ये होगा ही होगा। ए बी सी आएगा सर। एक ही एक्सप्रेशन आएगा। कितने ग्रुप बने पहले ये बताओ? सर ग्रुप बन ही नहीं रहा है। 4 अलग अलग एक एक का ग्रुप बनेगा। 4 अलग अलग एक एक का ग्रुप बनेगा। सर सेम सर ग्रुपिंग तो बन रहा है ग्रुप सेम सर, एक ग्रुपिंग मिनट। तो पहले भी किए हैं सर। देखो पहला 1 कहाँ पर है? सर एक एक का यस। हाँ बस तो बता रहा, 1 2 1 4 1 2 4 7। एक तो 1 पर 1 है, 2 यहीं 4 पर है, 7, तो यस सर। 1 पे ये ले लेता हूँ। 2 पर चाहिए तो ये 2 पे ये चला जाएगा। 7 पे तो है ही, 6 वाला 4 पे ले लेता हूँ। एक 4 पे 4 पे सर। दे दीजिए सर। 6 7 हटा, 7 है 4। अब नहीं बनेगा, सही है, ग्रुप नहीं बन रहा, बट एक एक का तो नहीं ग्रुप बन रहा है। बनेगा ना। तो पहले वाले एक ग्रुप का एक का आंसर क्या ग्रुप होगा? बनेगा 4 सर। वाले। एक एक का हाँ 4 तो ग्रुप एक एक का बनेगा। आंसर लिख दो, 4 ग्रुप बनेगा।
तो 1 तो सारे कवर करने ही करने हैं कैसे भी करके, तो आंसर आपका यही आना चाहिए, ये वाला। देखो ये आंसर आ रहा है कि नहीं। हाँ सर। यस सर आ रहा है। सर यही आ रहा है। एक बार भी हेलो सर। हाँ हेलो, बोलो। हेलो सर हेलो। मुझे लगा मेरा नेटवर्क से लगे, आप म्यूट किया। नहीं नहीं, देखो आंसर सब सबका सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। सभी का आ रहा है सेम, यही जो लिखा हुआ है। यस सर। ओके। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सो वी विल जस्ट सी लिटिल बिट क्वेश्चंस इन जीटीयू व्हाट दे हैव आस्क्ड इन द जीटीयू एग्जामिनेशन। तो पहले लैब देख लेते हैं, सिमुलेशन में तो आप कर सकते हो। तो हाफ एडर पे क्लिक करो, हाफ एडर लास्ट टाइम हो गया था, तो वी आर नॉट गोइंग फॉर दैट थिंग, वी आर गोइंग फॉर फुल एडर। सर आपका स्क्रीन वॉश हो चल रहा है। नहीं सही चल रहा है, कोई इशू नहीं है। ओके, सो नाउ हाफ एडर में सर्किट पहले से बनी हुई है, पहले तो आपको सप्लाई अप्लाई करना है, तो स्विच ऑन द सप्लाई, तो सप्लाई विल बी ऑन। नाउ यू हैव टू अप्लाई द इनपुट, तो ए बी, तो फर्स्ट यू विल गो फॉर 0 0, तो 0 0 है अभी दोनों। ऐड, क्लिक ऑन ऐड, so you will get first combination 0 0, sum will be 0, carry will be 1. Now 0 1, add 0 1, your sum will be 1, carry will be okay. Now third combination 0 1 0, so apply 1 0, add, so you will get sum 1, carry 0. Then fourth, both are 1, add, so sum will be 0, carry will be 1. Once all combination is done, just take the snapshot of this. Now we are having second simulator where you can verify whether your combination is correct or wrong. So if you apply 0 0, so your sum should be 0 or 1. 0 0 है तो sum क्या होगा? 0 होना चाहिए सर। Carry 0। 0. Once you apply this, check it whether it is correct or not. So you can verify it's correct. Same way you can apply 0 1, sum will be 1, carry will be 0. Check it. So both is 1, then sum will be 0, carry will be 1. Check it. So 1 1. Now second is 1 I have taken for B. So now I am taking for this one. So 1 0. And if you apply 1 1, your answer will be incorrect. So you can verify both the things you can do. So first simulator you can generate. Second is verification of half adder. Same way this is for full adder. So full adder you can perform. Now first switch on the supply. Then first you have to apply all the combinations. So 0 0 0 is there. So click. So 0 0 sum will be there. 0 carry will be 0.
Now C with 1. So sum will be 1, carry will be 0. Now 0, 1, 0. B will be 1. 0, 1, 1. 1, 0, 0. 1, 0, 1. 1, 1, 0. And 1, 1, 1. So all 8 combination are done and we are getting this kind of truth table. So we have drawn this truth table on. यही हमने बनाया भी है यहाँ पर, सेम है, कोई फर्क नहीं है दोनों में. So in this way you can do this thing. Now you can go for the simulator 2. There you can verify the truth table whether it is correct or wrong. So 0, 1, 1. So your output will be, sum will be 0, carry will be 1. So it shows wrong. It shows correct. Okay. Now if you click on sum 1 and carry 0, your answer will be करेक्ट ही आ रहा है so, गलत है. So it should be wrong. Okay. So sometimes it shows correct, but sometimes in some cases it is showing wrong. Okay. So just you have to verify it. Okay. So in this way you have to complete this experiment. So you have to take the snapshot both the simulators. Simulator 1, simulator 2. So simulator 2 में आप correct आने चाहिए. अगर कहीं गलत wrong आ रहा है तो आप वापस से रीसेट करके कर लो. तो प्रॉब्लम वो कोडिंग में ही प्रॉब्लम होगी और तो कुछ नहीं होगा. So they have not verified all the cases. So that's why the problem is there. Then you have to go for the post test. So half adder have a major limitation that it cannot. क्या लिमिटेशन है उसमें? बिट कैरी नहीं कर सकता सर. So नेक्स्ट स्टेज में the difference between half adder and full adder. हाफ एडर हाफ में एडर 2 इनपुट has होता है only सर, 2 फुल एडर में 3 इनपुट. फुल है. हाँ, तो अगर आपने यहाँ ये वाला सर होगा, ये वाला पढ़ा होगा, सी तो अगर आपने यहाँ पढ़ा होगा तो आप कर सकते हो, अदरवाइज फिर आपको दिक्कत होगी कि एमसीक्यू कैसे करना है. तो एमसीक्यू के लिए आपको पहले ही बताया कि वी विल डिस्कस हाउ टू अटेम्प्ट द एमसीक्यू. तो वो हम आप एक टाइम मेरे को आज या कल में कभी बता दो कि इस दिन हमको करना है, तो वी विल डू दैट टास्क. ठीक है. तो ये आपका लैब, सेकंड लैब, थर्ड लैब कंप्लीट हो गया. तो थर्ड लैब यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है. तो नाउ वी विल मूव टू द हाफ सबट्रैक्टर एंड फुल सबट्रैक्टर, क्योंकि बाकी सारे लैब में कंप्लीट हो गया था, सिर्फ आपका ही रह गया था क्योंकि लास्ट टाइम शायद लाइट चली गई थी या कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो वी हैव नॉट कंप्लीटेड दिस लेक्चर. जैसे फुल एडर और फुल सबट्रैक्टर है, फुल एडर है और हाफ एडर है, वैसे ही हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर होंगे. तो दोनों में वही डिफरेंस है. इन द हाफ सबट्रैक्टर वी आर हैविंग ओनली 2 इनपुट, a minus b, but in full subtractor we are having a borrow input also. तो आप borrow भी तो ले सकते हो, किसी से ले सकते हो ना. यस सर. तो वो भी होगा एक. So now we will see first truth table. तो वो तो आपको ही बनाना है. तो पहले हाफ सबट्रैक्टर. How many inputs are there? A and B. And how many outputs will be there? 2 सर. कैरी एंड बोरो. कैरी एंड बोरो नहीं, सबट्रैंड सिर्फ कैरी होगा सर, बोरो नहीं लेगा. एक तो सबट्रैंड होगा और दूसरा होगा बोरो. चलो now we prepare the truth table. So A, B, subtrahend and borrow, BW. Okay, 4 possible combinations: 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Okay, so बस ये वाला टेबल करके we will take a break. So subtract में क्या होगा? 0 minus 0 0 सर. 0 बोरो में 0 हो जाएगा सर, ऊपर लिखा रहा है. okay. 0 minus 1. मैं इसका सब्ट्रैक्ट तरीका 0 सर, बताऊंगा. बोरो 1. सब्ट्रैक्ट 0 बोरो 1 सर. Okay. 1 minus 0. सब्ट्रैक्ट 1 सर, बोरो 0. 1 minus और 1. 0 0 सर. 0 0
जीरो जीरो। ठीक है, अब जिसको याद रखने में दिक्कत होता है, 0 माइनस 0, आंसर तो 0 ही आने वाला है, सीधे डेसिमल में करना है जीरो। तो आंसर 0 आएगा। 0 आया मतलब बोरो नहीं है, माइनस साइन आएगा इसका मतलब बोरो लेना पड़ रहा है। तो 0 माइनस 1, डेसिमल में क्या आंसर आता है, -1। तो माइनस जैसे ही आए तो माइनस यहाँ हटा के पहले बोरो 1 कर दो, और ये जो आपका है वो आपका सबट्रैक्ट का आंसर है। सर हाँ यस। सर यहाँ पे कैरी नहीं नहीं ले रहे हैं। कैरी क्यों होगा, सबट्रैक्ट में कैरी कहाँ होगा? सब्ट्रैक्ट में बोरो कैरी की जगह यहाँ बोरो माइनस हो रहा लेते है, हैं। ओके सर ओके। बोरो बोरो लेंगे ना उसको। तो माइनस अगर आए तो दिक्कत है आपको, माइनस आए तो क्या करना है आपको, वहां पर बोरो लेना है। सर माइनस साइन को जीरो से रिप्लेस कर देंगे। नहीं वो तो ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा है, मतलब आपका माइनस साइन है इसका मतलब आप सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, आपको बोरो लेने की जरूरत पड़ेगी। यू हैव टू सर टेक द बोरो। लॉजिकल वे में तो वैसे ही करेंगे ना, क्योंकि अगर सर तो अभी -1 अभी आता है तो ये टेबल माइनस सही को नहीं है जीरो। बेटा, टेबल गलत है। कहाँ गलती है बता सकते हो? सेकेंड हमने वन किया, सर। वहां पे क्या आएगा, यहाँ पर सबट्रैक्ट में 1 आएगा। 1 आएगा। सिंपल सी बात है, अगर आपको मैंने जो बताया कि 0 माइनस 1 है तो आपका आंसर आएगा -1। तो ये माइनस रिप्रेजेंट करता है कि बोरो है आपके आंसर में। तो दिस माइनस रिप्रेजेंट दैट यू आर हैविंग ए बोरो इन योर आंसर एंड योर आंसर इज 1। दिस इज योर सब ट्रेंड एंड दिस इज योर बोरो। तो जस्ट रिप्लेस माइनस बाय बोरो 1, दैट्स इट। तो दिस इज द इजिएस्ट वे टू रिमेम्बर इट। तो सबसे इजी वे क्या है कि मेरा आंसर का -1 आया, माइनस आया इसका मतलब है कि मेरे को एक बोरो लेना पड़ रहा है। तो बोरो लेना पड़ रहा है तो वो आपको यहाँ पे बोरो 1 आ गया, और इस वहां पे लेते ही इसको माइनस को हटा दो, बोरो लेते ही इस 1 को माइनस को यहाँ से हटा दो। नाउ क्या है आपका आंसर 1। ये 1 जो है वो आपका सबट्रैक्ट का। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, रख पाओगे अभी, क्योंकि 3 वेरिएबल का आएगा तो दिक्कत होगी। हेलो। यस सर। यस सर। हाँ तो अभी यू कैन टेक ए ब्रेक ऑफ 5 minutes एंड वी विल कंटिन्यू। ठीक है, आप ब्रेक ले लो, उसके बाद 3 वेरिएबल का बनाते हैं, तो फिर उसके बाद दोनों अक्के में बना के फटाफट एक खत्म करेंगे।
So all of you are back. Yes, sir. Okay, so should we continue? Okay. So now we are going for full subtractor. So full subtractor, we are how many combinations we are having? We will have three inputs. So total 8 possible combinations will be there. So just I am copying that thing. So A, B, instead of C, we have borrow. So borrow in. So we will write borrow in. And here we will have subtract. So a subtract and borrow out will be there. Chalo, so we will delete these two columns so that we can answer it. And I will make it white for the better understanding of all the possible combinations. Out to design shading white. Okay. Now अब तो डिफिकल्ट होने वाला है कि कहाँ पे बोरो इन आने वाला है, कहाँ पे बोरो आउट, माइनस कहाँ पे है, कहाँ पे प्लस है. ठीक है. अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो एक यहाँ पर सॉरी हाँ यहाँ पे लेफ्ट में कॉलम ले लेने का. ठीक है. एग्जाम में ये जो कॉलम जो मैं यहाँ पे लिखूंगा वो पेंसिल से लिखना है. इज इट क्लियर? यस सर. ओके. 0 माइनस 0 मेरे को डेसिमल में आंसर बोलो सर. थोड़ा आपका आवाज स्लो आ रहा है सर. मैं बोल रहा हूँ 0 माइनस 0 क्या आएगा आंसर? 0 आएगा सर. 0. 0 माइनस 0 अगेन 0. 0 माइनस 1 1. माइनस 1. यस सर. -1. 0 माइनस 1 -1. 1 माइनस 0 1. 1 माइनस 0 1. 1 माइनस 1 0. 1 माइनस 1 0. इतना क्लियर है? ये जो मैंने बीच में भरा ये इंटरमीडिएट है. ये इंटरमीडिएट आंसर है. ठीक है. हेलो अरमान. यस सर. यस सर. इतना क्लियर है ये जो बनाया बीच में? यस सर. कि इसमें कोई डाउट? नो. सबको क्लियर है? ओके. अब अगर यहाँ पे माइनस है ना तो इसको पहले माइनस को डिलीट करके बोरो को 1 कर देना है. समझ में आया? यस सर. यस सर. यस सर. तो यहाँ पे माइनस डिलीट किया तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जो बोरो आउट है इसी साथ में उसमें 1 करना है. यहाँ 1 कर दिया. यहाँ पे -1 है तो इसको माइनस निकाल के बोरो आउट में 1 कर दिया. माइनस लेने का माइनस आने का मतलब क्या आंसर? आपको बोरो लेना पड़ेगा. बोरो 1 हो जाए. बोरो. इतना क्लियर है? इतना क्लियर हो गया सबको? यस सर. अब ये दोनों का काम खत्म हो गया. ए बी का काम खत्म हो गया. अब जो इंटरमीडिएट और बी इन बचे हैं इन दोनों का काम बाकी है. अब इन दोनों को ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करो जैसे ऊपर किया है. 0 माइनस 0 सब्ट्रैक्ट विल बी 0. बोरो विल बी 0. 0 माइनस 1 -1. -1 होगा सर. माइनस हटा के कहां बंद कर दें? 1 बोरो में सर. हाँ. 1 माइनस 0 1. 1 माइनस 1 0. 1 माइनस 0 0. 1 माइनस 0 यस सर. 0 ही होगा. नहीं सर. 1 होगा सर. 1 होगा सर. 1 माइनस 1 0. 0 माइनस 0 0. 0 माइनस 1 1 होगा और बोरो 1 हो जाएगा सर. ये माइनस हटा के 1 यहाँ कर देना है. बाकी सब जगह 0 ही होगा. ये आपका केम बन गया. बनाते समझ में आ गया कैसे बनाना है, याद कैसे रखना है इसको? सर. हाँ अरमान बोलो. बोले इनपुट इंटर क्यों ले रहा है? मतलब ये इनर इंटरमीडिएट इसलिए लिया क्योंकि 3 माइनस एक साथ नहीं कर सकते. 0 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 1 वो डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए.
तो उतना बड़ा याद ना रखना पड़े, इसलिए क्या किया, पहले दो वेरिएबल को माइनस कर लिया, ए बी को। अगर बोरो आ रहा था तो बोरो मैंने यहाँ लिख दिया और यहाँ पर उसका इंटरमीडिएट आंसर लिख दिया ए माइनस बी का, फिर जो इंटरमीडिएट आंसर आ रहा है उसको फिर से माइनस कर दिया। तो ए जैसे हम ए प्लस बी, देन बी जो आंसर आएगा उसको सी के साथ ऐड करेंगे, वैसे यहाँ पे किया है ए माइनस बी, जो आंसर आएगा उसको सी के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू। और इस तरीके से आपको याद रहेगा, नहीं तो क्या होगा कि ऐसे तीन कॉम्बिनेशन में तो आपको भी मतलब रट्टा ही मार के जाओगे, और कोई तरीका नहीं है कि हाँ आप इस तरीके से आंसर निकाल लो। तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू रिमेम्बर इट, कि इसको किस तरीके से करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस एक सर। बार और यस बताओ, सर, सब यस बना सर, लेंगे यस टेबल? क्लियर, क्लियर, यस सर। यू ट्राई इट वंस, क्योंकि ये मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ये फुल सबट्रैक्टर का ट्रुथ टेबल है वो गलत ही बनाते हैं, दे आर नॉट मेकिंग करेक्ट ट्रुथ टेबल। उसके बाद इसकी जरूरत नहीं है, यू रिमूव दिस थिंग, सो आई डोंट वांट दिस थिंग। ये तो खाली से समझाने के लिए है, तो एग्जाम में ये बनाना नहीं है, ये सिर्फ आपको याद रखने का एक तरीका है खाली। आप एक बार ट्राई कर लो अपने हाथ वहां पे पेपर पे, अगर कोई डाउट होता है तो वो हम क्लियर कर लेंगे। क्योंकि बस खत्म ही है अभी, बस तो अब उसमें हमको खाली ये मैं बना के इसका आंसर लिखना है, वो तो आप लोगों को अच्छे से आता है। हो रहा है सभी से? 1 minute, sir. ओके ओके, ट्राई।
हो जाए तो बताना मेरे को। तीन ग्रुप बनेंगे। नहीं ग्रुप तो नहीं मैं पूछ रहा, पहले वो हो गया ग्रुप तो वही 3 बनेंगे, आंसर बोल दो फिर यू कंप्लीटेड दिस। तो ये द फर्स्ट ये ग्रुप विल बी 3 and 7। एक ग्रुप तो यही बनाया होगा आपने 3 7 का। ए बार सी, ए बार बी और बी सी। सभी को आ गया आंसर? एक बार के मैप भी बना, ट्रुथ टेबल भी बनाकर देख लो बेटा कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही ना ट्रुथ टेबल में, क्योंकि ट्रुथ ये टेबल ही बना रहा है सर। हाँ क्योंकि क्या होता है एग्जाम में आप रट नहीं सकते इतने सारे ट्रुथ टेबल, आप रटने जाओगे तो आप भूल ही जाने वाले हो। आपको समझ के हर एक का लॉजिक याद रखकर उसके बाद ही आप बना सकते हो। तो पहले वो देख लो सभी। वंस यू फील कंफर्टेबल ओके आई कैन मेक द ट्रुथ टेबल, फिर तो के मैप तो कुछ नहीं है, के मैप तो आपको मतलब इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि यू विल बी एबल टू राइट दैट आंसर, क्योंकि फुल एडर या फुल सर सब्ट्रैक्टर ये ट्रूथ क्वेश्चन टेबल रहेगा। में सर कभी कभी प्रॉब्लम हो लगता है। नहीं होगा सौरभ, अगर है तो अभी बताओ, मैं फिर वापस समझाता हूँ, ऐसा नहीं है किसी भी ट्रुथ टेबल एक में बार प्रॉब्लम समझा नहीं दीजिए होता। सर, सर थोड़ा सा ट्रूथ टेबल में। हाँ तो अभी सौरभ तुम आंसर करना, ठीक है? यस सर। तुम आंसर करना मैं जो पूछूं। पहले तो एक इंटरमीडिएट रिजल्ट चाहिए, मैं ये सारे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? 0 - 0 क्या होगा, डेसिमल में आंसर बताना है, फटाफट बोलते जाओ। 0 फिर 0 नहीं दिख रहा है तो थोड़ा जूम कर देता हूँ। हाँ 0 फिर फिर -1 तो 1, नहीं नहीं पूरा बोल दो, पहले टेबल कंप्लीट कर दो। -1 फिर फिर 1, यहाँ 0 - 1 है बेटा। तो -1 होगा सर यहाँ पे। हाँ हाँ ठीक है यहाँ पे -1। बोले हैं ना, फिर 1, हाँ 1। फिर 1, हम्म फिर 0 0 1 1 1 -1 0 1 -1 0। यस सर। 0 0 ठीक है, भर गया पूरा। हाँ हाँ। अब यहाँ पर कभी हम तूने बाइनरी में -1 सुना है? नहीं सर 1। तो अब ये माइनस हटा देना, माइनस अब हटाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना। हाँ तो हाँ। माइनस हटा के कहाँ पर आप 1 लिखोगे? बोरो में। और कहाँ पे माइनस बहुत में आया? 1 यहाँ हो पे। जाएगा। तो यहाँ पे भी माइनस हटा के यहाँ पे क्या आएगा? बस 1 आ जाएगा। इतना आ गया। बाकी सब यस सर। अब सौरभ अब ये दोनों भूल जाओ, ए बी का काम खत्म, हाँ, ठीक है? अब ये दोनों को देखना, 0 - 0 फिर वैसे ही बताओ आंसर, 0 - 0 0 फिर 0 - 1 0 -1 बोलो, -1 1 -1 बोलो, अगर माइनस आ रहा है तो -1 यस माइनस। सर। हाँ फिर 1 हम्म 0 हम्म 1 हम्म 0 हाँ फिर 0 हम्म -1 ठीक है। अब वापस यहाँ माइनस आ रहा है तो ये माइनस हटा के कहाँ 1 करना 1 है? कर देना है। बोरो, बोरो में, ठीक है? और कहाँ माइनस आ रहा है? यहाँ पर, इसको हटा के कहाँ 1 कर देना है? बोरो में। बाकी जगह हो पे गया क्या सर आएगा? कंफ्यूजन। 1 0 बाकी बन सारे जाएगा। जगह पे 0 हो जाएगा। हाँ तो बन जाएगा सभी से ट्रुथ टेबल। अब यस। अरमान, यस सर। अरमान यस सर बन जाएगा इजी। बन जाएगा ना? आप के मैप का नीचे आंसर बता दो नी- फटाफट, क्या क्या है? नीचे वाला टेबल। के मैप में मैंने फिल कर दी है, फिल तो करते आता है आप लोगों को, तो फिल मैंने कर दी है। अभी फिल का आंसर बता दो कि क्या आएगा। सर ए बार सी होगा पहला, हम्म और ए बार बी होगा, और बी सी होगा। दिस विल बी द आंसर, ये बोरो का आंसर है। सर रिपीट कर सकते हैं क्या? हाँ रिपीट तो कर दूंगा, उसमें क्या है। देखो बोरो आउट में 1 कहाँ कहाँ पे है? एक तो यहाँ पर है,
यस यहाँ पर है ये 2 में, और एक यहाँ पर है। तो कहाँ कहाँ पे बोरो आउट 1 है? 1 2 3 या 7, यहाँ पर क्या आएगा? 1 2 3। इतना क्लियर है अरमान? यस यस सर यस सर। अब मेरे को यहाँ पे 1 2 3 7 में 1 डालना है, तो 1 में 1 डाल दिया, 2 में 1 डाल दिया, 3 में 1 डाल दिया, 7 में 1 डाल दिया। हो गया फिल अरमान? यस सर यस सर। अब ग्रुप बनाओगे तो किसका बना सकते हो? 3 का तो साइज मैंने बताया कि इनवैलिड है। साइज Yes, sir, वैलिड दो कौन का कौन से होगा। हैं? 1 दो 2 4 और 8। तो हमको उल्टा बनाना था। 8 का तो बन नहीं रहा, तो फिर 4 का ट्राई किया तो 4 का भी नहीं बन रहा, तो 2 का बन रहा था, तो तुमने 2 का बनाया। पहले 1 3 का, फिर 2 3 का, फिर 3 7 का। अब 1 3 को देखो, तो 1 3 के यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखूंगा तो सी ए बार कॉमन है। हाँ, और ऊपर से क्या कॉमन है? सी कॉमन है। सी लेफ्ट कॉमन में है। ए बार कॉमन है और ऊपर से सी है, तो ए बार सी पहले काम। दूसरा देखो तो बीसी वाला, ये वाला ग्रुप, ये वाले ग्रुप में दोनों चीजें हैं, ए बार भी है और ए भी है, तो क्या आएगा? 1, और ऊपर से क्या आएगा? बीसी तो कॉमन ही है दोनों के लिए, तो बीसी आएगा। अब ये थर्ड वाला ग्रुप देखो तो क्या है? लेफ्ट में ए बार, ये इंडिविजुअल है तो ए बार इधर से आ गया, ऊपर से कॉमन क्या है? बी, तो ए बार बी आ गया। क्लियर है क्या अरमान? डाउट अब है? कोई कंफ्यूज नहीं है सर सर। बीसी कोई वाला confusion एक बार बीसी वाला एक। अच्छा, बीसी बताना ना, बाकी मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि फिर वो Yes. कंफ्यूजन। नो सर कोई कंफ्यूजन नहीं, बस बीसी एक बार। हाँ तो ठीक है, ये मैं ग्रुप डिलीट कर देता हूँ। अब ये बीसी देखो, लेफ्ट साइड में देखो, ये ए बार में भी है यस सर। और ए में भी है, दोनों में है। हाँ हाँ। तो दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा? ए बार प्लस ए। ए बार प्लस ए। ए 1 होता है सर। हाँ, तो यहाँ से क्या आया? लेफ्ट से 1। 1, और ऊपर देखो, ऊपर तो ये 2 ही है, बीसी है, इसके अलावा कोई Yes. ऐसा टर्म है ही नहीं, तो कुछ चेंज हो ही Yes, नहीं रहा है, तो कांस्टेंट ही है, तो बीसी आ गया सीधे। 1 डॉट बीसी, तो 1 को तो हम ऐसे ही हटा देते हैं, तो बीसी लिखा है। ओके सर ओके। इसका आंसर लिख लो, इसका सब्ट्रैक्ट का सम के जैसा ही आएगा, वही ट्रुथ टेबल मिला होगा। सर हाँ बोलिए। सब्जेक्टिव पेपर में सर ये ट्रुथ टेबल बनाना कंपलसरी होगा? हाँ, ट्रुथ टेबल के बिना कैसे होगा? उसी के तो मार्क्स है। 7 नंबर का क्वेश्चन आता है फुल सब्ट्रैक्टर। सर तो ये तो के मैप से बनाना है बोल रहा है, तो सिर्फ के मैप से नहीं काम चलेगा? क्या नहीं मालूम चलेगा? सर के मैप से। मैं समझा नहीं बेटा, के मैप से क्या मतलब, क्या डाउट सर है? जैसे क्वेश्चन था सिंपलीफाई के यूजिंग के मैप, हाँ, तो के तो मैप से सर बनाना ट्रुथ है। टेबल के बारे में तो कुछ बोल नहीं रहा, तो ट्रुथ नहीं, टेबल वहां पर सर। ट्रुथ टेबल नहीं, मेरे को लगा आप पूछ रहे हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर, उसमें बनाना पड़ेगा, बाकी उसमें तो नहीं बनाना पड़ेगा। उसका क्वेश्चन मैं बता देता हूँ जीके में कैसा आता है। श्योर सर। हाँ ये तुरंत। असाइनमेंट 1 भी कंप्लीट नहीं हुआ था सर, आप जीटीयू के पेपर से वो करवा रहे थे असाइनमेंट 1। नहीं नहीं, वही करना है, वो आपको जो दिया है वो असाइनमेंट नहीं करना है, जो मैंने आपको करवाया है ना क्लास ये लैब में, मेरे लिए वही सबमिट करना है, बाकी फैकल्टीज का वो है। ठीक है, मेरे में तो वही करना है। यस, ये रहा। जीटीयू के पेपर से करवा रहे थे assignment। हाँ हाँ, मैं ये वही क्वेश्चन करवाऊंगा। करवाए थे सर। पर अभी क्या, अभी तो आज तो मैंने रिडक्शन कराया, और अभी के मैं बिना पढ़ाए मैं दूसरा आगे करा नहीं सकता, तो इसलिए वेट कर रहा हूँ खत्म हो जाए। देखो ये है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ऐसा आएगा, यूजिंग टेबुलेशन मेथड है, सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन, इसको के मैप से करना है। ये सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन है, इसको किसी से भी कर सकते हो, के मैप से भी कर सकते हो, बुलियन अलजेब्रा से भी कर सकते हो, तो वो भी मैं बताऊंगा कि दोनों से कैसे होता है। अब यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया है, तो अब नंबर कैसे निकालने हैं तो वो भी पता होना चाहिए। सर ऐसे पेपर्स में होते हैं। सर हाँ बोलो बोलो, हेलो सुन रहा हूँ, बोलो बोलो। 2 का सी सर।
तो सी में से डायरेक्टली क्वेश्चन में लिखा है टेबुलेशन मेथड का यूज करके, टेबुलेशन मेथड एक अलग मेथड तो वहाँ तो सर टेबल बनाना कंपलसरी हो। ये मेथड ही अलग है। टेबुलेशन मेथड एक और मेथड है। अब के मैप की लिमिटेशन क्या है कि आप 5 या 6 वेरिएबल तक कर सकते हो, लेकिन 6 वेरिएबल से ज्यादा होगा तो आपको कॉम्बिनेशन देखने में दिक्कत होगी। तो दूसरा एक मेथड निकाला है, वो टेबुलेशन मेथड है। वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा बेटा साहब, अभी फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है, नेक्स्ट चैप्टर में सब मेथड है। तो टेबुलेशन मेथड अलग से एक मेथड है, उसके लिए पूरा टेबल फॉर्म करते हैं, उसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं वो काउंट करते हैं। तो मैं बताऊंगा, वो डोंट वरी, आपको जैसे जैसे सिलेबस खत्म होगा वैसे वैसे उसके क्वेश्चन जीटीयू के करा दूंगा। मेरे को पता है कि अभी मैंने इतना नहीं कराया कि अब मैं जीटीयू कोई क्वेश्चन करा सकता हूँ लैब में, इसलिए कुछ करवा नहीं रहा जीटीयू क्वेश्चन। जैसे ही मेरे को लगेगा कि हाँ अब एनफ कंटेंट है, अब मैं जीटीयू क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा सकता हूँ, वी विल वो गो फॉर प्रैक्टिस। अभी आज के दिन में तुम पता है खाली एक ही क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसे रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, एक तो ऐसे या तो फिर डिमॉर्गन थ्योरम, ये दो ही क्वेश्चन कर सकते हो। अब वो दो क्वेश्चन के लिए मेरे को पूरा नहीं कर, एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन होने चाहिए अलग अलग वेराइटी के, कि जो मैं प्रैक्टिस करा सकूं जीटीयू के लिए। अब चैप्टर 1 कंप्लीट होगा ना, तब जीटीयू का अब होगा खत्म, चालू होगा क्वेश्चन। तो इस नेक्स्ट लैब से जो होगा ना, तो उसमें जीटीयू की प्रिपरेशन होगी, लेकिन उससे पहले मिड टर्म आ जाने वाला है शायद। तो मिड टर्म के लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी एमसीक्यू की। तो उसके लिए मैं अलग सेशन एक कंडक्ट कर लूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है, कैसे करना है। तो मार्क्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, so you don't bother about those things. You just bother about that you are confident or not. अगर आपको लगता है कि अभी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ ये करने में, तो यू आस्क मल्टीपल टाइम, बस मेरा कंसर्न वही है अभी। अगर आप कॉन्फिडेंट हो ना, तो मेरे को पता है कि हाँ एग्जाम में जाते जाते तो आप आराम से कर सकते हो चीजें कभी। तो अभी कॉन्फिडेंट होने चाहिए आप एटलीस्ट। इसका आंसर क्या आ रहा है सबट्रैक्ट का? ए बी डैश सी डैश प्लस ए डैश बी डैश सी प्लस ए बी सी प्लस ए डैश बी सी डैश। ये आंसर आपका सम के लिए भी यही आंसर आया होगा, देख लो, और सबट्रैक्ट के लिए भी यही आंसर आया है, दोनों के लिए आंसर सेम है। सीक्वेंस अलग है सर, लेकिन हाँ, सीक्वेंस का मतलब क्या, आंसर तो यही होगा ना। गेट आगे पीछे लगाने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। मैं अगर इस एक्सप्रेशन को ये वाला टर्म पहले लिख दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला है? आज ही पढ़ा है कि कॉम्पिटेटिव लॉ फॉलो करता है, तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन राइटिंग द टर्म्स इन फ्रंट और बिहाइंड। तो जस्ट इट्स ए मैटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन दोस थिंग, रिप्रेजेंटिंग दोस थिंग। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है। तो टू वेरीफाई हाफ एंड फुल सबट्रैक्टर, तो फिर आप वही कर सकते हो, प्री टेस्ट जो फॉर्म है वैसे ही जाना है, प्रोसीजर सिमुलेशन, हम सिमुलेशन पे सीधे जाते हैं। तो हाफ सबट्रैक्टर क्लिक करो, देन दे यू आर हैविंग ए सर्किट। तो अगेन फर्स्ट अप्लाई द सप्लाई, फर्स्ट 0 0 add it, 0 1 add it, 1 0 you add the combination, and 1 1 you make the count. So you will have this table, then you can verify. So you apply 0 0, so subtract and difference and borrow will be 0 0. You can check whether it is correct or not. 0 minus 1, you will have 1 difference and 1 borrow. Check whether it is correct or not. 1 minus 0, difference is 1, borrow will be 0. 1 minus 1, difference will be 0, borrow will be also 0. Check whether it is. So all combination has checked. So just take the snapshot and submit it. मैं उसको आपको बना के दूंगा, तो उसमें करना है। तो ये हाफ ट्रैक्टर सेम वे। यस सर, अगर हम इनपुट को 1 लेते हैं तो, और इनपुट ए को 1 लेते हैं और इनपुट बी को 0, तो इनपुट ए को 1 लोगे, इनपुट बी को 0 लोगे, तो ए माइनस बी क्या होगा? 1, डिफरेंस 1 होगा, बोरो 0 होगा। 1 माइनस 0 क्या होता है? 1, तो वो तुम्हारा डिफरेंस। यस बोरो तभी लेगा जब तक माइनस नहीं आएगा, तब तक बोरो नहीं आएगा।
सर वो जो सिमुलेशन है उसमें ऑटोमेटिक ले लेगा ना, जैसे कि नहीं, इसमें यहाँ पहले वाले में लेगा, पहले वाले में आपको क्रिएट करना है तब वो लेगा, दूसरे वाले में आपको वेरीफाई करना है तो आपको इनपुट देकर चेक करना है कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहीं पे फुल सबट्रैक्टर में जाओ तो मैं वो सिमुलेटर 2 बताता हूँ कैसे करना है। आपको अलग अलग इनपुट देना है, ठीक है। मैंने दिया 0 0 0, क्या आना चाहिए डिफरेंस और बोरो? 0 0। 0 0। हाँ तो ये 0 0 आना चाहिए, तो पहले सब फिल कर दो, फिर चेक करो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, तो यहाँ पे बताएगा कि हाँ करेक्ट है। अब 0 0 0 0 1 ले लो, तो 0 माइनस 0 क्या आएगा? 0। हाँ तो दोनों में आंसर 1 1 आएगा। 1 तो चेक कर लो सही है कि नहीं, तो इट्स करेक्ट। तो इस हाँ तो बस इस तरीके से कंप्लीट करना है। सिमुलेटर 1 में तो खाली टेबल बनेगा, तो 0 0 0, सॉरी प्रिंट नहीं, zero zero one you can take add, 0 1 0 you can add, 0 1 1 3 4 1 0 0 5 6 then 7, सारे कॉम्बिनेशन कंप्लीट। तो इस तरीके करके दोनों आपको खाली इसी के स्नैपशॉट चाहिए, बिकॉज सभी के पास लैपटॉप नहीं है, सो आई विल आस्क फॉर द स्नैपशॉट्स ऑफ द फॉलोइंग ओनली। तो मैं सिर्फ इनका स्नैपशॉट और सेकंड वाले का स्नैपशॉट दोनों आपको सबमिट करना है, एंड यू हैव टू कंप्लीट दोज एक्सपेरिमेंट। तो ये अभी नहीं, नेक्स्ट वीक में दोनों कंप्लीट करने हैं, थर्ड एंड फोर्थ। तो खाली ये 4 स्नैपशॉट्स आएंगे और प्री लैब और पोस्ट लैब, तो टोटल इतना टास्क होगा। सर मिड से पहले 2 ही रहती है। हाँ ठीक है, जितना होता है उतना करो। तो टोटल 4 एक्सपेरिमेंट हो गए। फर्स्ट हुआ हमने कौन सा किया? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वी हैव गॉन फॉर बेसिक गेट, सेकंड यूनिवर्सल गेट सर, यूनिवर्सल, थर्ड फुल एडर, थर्ड हाफ एडर, फुल एडर एंड हाफ एडर, सबट्रैक्टर फुल एंड हाफ। तो ठीक है, अभी का आपको क्या टास्क है? बस आज के टास्क को खत्म। तो अब आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो अगर आपको कोई डाउट हो मेरे को वो बता सकते हो कि हाँ मेरे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ सर रहा है या हाँ फिर ये नहीं हो रहा है, तो यू कैन आस्क दोस सर, प्रॉब्लम। हाँ बोलो। मिड टर्म का ये जो सिलेबस क्या है? फर्स्ट चैप्टर ये ओनली नहीं फर्स्ट? आएगा, ओनली ओनली फर्स्ट? फर्स्ट। हाँ, और उसके लिए मैंने बोला ही आपको कि वी विल डू द प्रैक्टिस फॉर दैट थिंग। ऐसे मैं आपको ऐसे एग्जाम में नहीं बैठने दूंगा, तो डोंट वरी। आपका मिड सेम हो चाहे G2 का एग्जाम हो, so that is my responsibility that you should able to answer all those things। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूंगा कि हाँ ठीक है आप चले जाओ